Welcome all, good morning. Today in our fourth lecture of grammar, we are going to move ahead with the explanation of tenses in detail. But before starting with tenses, I would like to tell you or give you a short explanation on which helping verbs would be used with different pronoun, so that when we move ahead with the tenses, it would become easy for you to understand. So in a very simple form, I had already told you that there are two groups that we had created for pronoun, that is I, you, we and they, right? Now this four pronoun would always go together because the helping verbs used with them will be the same. For example, I, you, we, they do. I, you, we, they have. You would never say I, you, we, they does, has, etc. Whereas on the other hand, we have he, she, it, and the verbs that we would use over here will be does, has. Let's take one more, that is with I we would take am. That is an odd man out, we would say. But with the other three, that is you, we, they, we would use you are, we are, they are, right? So I would use are also over here. With that one we had used with I had used am. Right? Whether here on the other hand I would use he is, she is, it is. We would not use a, r, e, r, o in this group. So accordingly, these are some of the helping verbs that we use for present tense. You can take the example now of past tense, that is, here it would be did for both A as well as for B group also. दोनों के लिए हम यूज करेंगे did, but that is past tense. Whereas this were present tense. Then in place of have and has, कॉमन आई वुड यूज़ वन मोर इज हैड, जो फिर से दोनों ग्रुप में जाएंगे, एंड अगेन इट इज पास्ट, राइट? सो आई यू वी दे डू, ही शी इट डज, आई यू वी दे हैव, ही शी इट हैज़, यू वी दे आर, आई एम, he she it is, all present tense helping verbs used with the different pronoun. But जब पास्ट में हम बात करेंगे तो ये ही डू और डस की जगह पे आई यू वी दे ही शी इट डिड, आई यू वी दे ही शी इट हैड, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर टेंसेस. So it would become now easier for you to use it. Now let's take the first one, that is simple present tense. Now in simple present tense, I would use, say, very simple one subject and one action. For example,
आई प्ले। इसका मतलब कि बाकी के इसके ग्रुप के कौन से प्रोनाउन थे, आई, यू, वी, दे, तो हर एक के साथ वही यूज़ होगा। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले। बट द मोमेंट आई वुड यूज़ ही, शी, इट वुड बिकम प्लेज। जैसे हमने कहा था, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बट he, she, it does, right? So with this, I, you, we, they, this all will go with this play. But if I use he, she, it will become plays. तो बाकी के बच गए she और it. We can use it with plays. ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसी को अगर मैं नेगेटिव में लिखूं, राइट, इट इज़ प्रेजेंट टेंस, रिमेंबर। अगर इसी को मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो व्हाट वुड आई राइट? आई वुड से आई डू नॉट प्ले, क्योंकि आई, यू, वी, दे के साथ हमने यूज़ किया था आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। तो अब नेगेटिव लिखना है तो आई नॉट प्ले नहीं लिखोगे। वॉट यू विल से? आई डू नॉट प्ले। नेगेटिव हो गया। और इसी को अगर तुम्हें क्वेश्चन में रखना है तो तुम कैसे लिखोगे? नेचुरली वंस अगेन आई, यू, वी, दे, डू। तो make a question, do I play? So very simple. अगर बहुत ही आसान तरीके से याद रखना है तो आई वुड से फॉलो दिस कॉलम, दैट ऑल्सो वुड बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दिस इज the different ways how we can frame simple present into positive, negative and question form. Now let's move ahead with simple present we did. Now we move on to present continuous. Now continuous, always remember it will be that ing form, that is playing, singing, etc. So now I will use over here I am playing. But as I told you just few minutes back कि I है इसलिए present tense I will use am. But if it is you, we, they तो हम क्या यूज़ करेंगे? A-R-E, R. So you, we, they. अब इसके साथ तो M नहीं लगा पाएंगे तो हम लिखेंगे you are playing, we are playing, they are playing. तो ये सारा हुआ प्रेजेंट, तो हुआ प्रेजेंट आर. कंटिन्यूअस, एक्शन को लगाया हमने ing, इट बिकम्स कंटिन्यूअस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सिमिलरली अगर नेगेटिव बनाना है यू विल राइट इन द सेम मैनर आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग. एम आई प्लेइंग, are we playing, are you playing, right? Then the next one we can say over here would be present continuous हो गया, simple present, a present perfect. Right? And in present perfect tense, I would always tell you to remember, first of all,
क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हैव विथ IUV दे। इसलिए मैंने थोड़ी मिनट्स पहले जो तुम्हें समझाया था कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन के साथ जाएंगे, देन ओनली टेंसेज वुड बिकम अ बिट ईजियर फॉर यू। सो IUV दे हैव। द मोमेंट आई से H word, that is have, has, had, it always is connected to perfect। अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए मैंने लिया है हैव। और क्यों हैव लिया? बिकॉज इट इज़ विथ IUV दे। लेकिन मैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ यूज़ करूँगी अगर मुझे यूज़ करना है ही, शी या इट से कोई सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट वाला। ठीक है। सो नाउ वी हैव सीन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट IUV दे के साथ जाएगा हैव। H वर्ड याद रखना फॉर हेल्पिंग वर्ब में हैव, हैज़, हैड हम यूज़ करेंगे जब हम परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑलवेज परफेक्ट वर्ड के साथ हमेशा थर्ड वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे एक्शन का। So there will be again a short video sent to you about 5 to 7 minutes related to what is third verb form. Many of you must be knowing about it. Like I would say play, played, played, present, past, perfect, right? Like do, present, did, past, and done is परफेक्ट, दैट इज़ थर्ड वर्ब फॉर्म। तो हैव और हैज़ के साथ हमेशा जो फॉलो होगा वर्ब फॉर्म वो थर्ड वर्ब फॉर्म होगा, राइट? सो वी आर टॉकिंग एट प्रेजेंट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी का अब हम आगे बनाते हैं विथ वन विथ आई एंड वन विथ ही। आई हैव, सो IUV दे हैव। हैव क्योंकि प्रेजेंट है और स्पेशली दिस H दैट इज़ परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हमने लिया हैव, और हैव इसलिए लिया क्योंकि IUV दे के साथ ये जा रहा है। सो आई हैव। अब मैंने बताया कि हैव के साथ क्या फॉलो होगा? थर्ड वर्ब फॉर्म, राइट? थर्ड वर्ब फॉर्म दैट इज प्ले का थर्ड वर्ब फॉर्म बन जाएगा प्लेड। कई बार पास्ट एंड थर्ड वर्ब फॉर्म आर सेम, तो प्लेड पास्ट टेंस भी है, प्लेड थर्ड वर्ब फॉर्म भी है। बट कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट है या थर्ड वर्ब फॉर्म है? अगर पास्ट होता तो मैं क्या लिखती? आई प्लेड, आई डिड। बट जैसे ही वो थर्ड वर्ब फॉर्म है तो हम क्या कहेंगे? आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड, और वी कैन से आई डू, आई एम डूइंग, आई हैव डन, she has done। तो थर्ड वर्ब फॉर्म, राइट? नाउ एज वी मूव अहेड, उसी तरह से तुम यहाँ पे नेगेटिव भी बना सकते हो। आई हैव नॉट प्लेड, शी हैज़ नॉट प्लेड, और उसी का हम क्वेश्चन बना सकते हैं हैव आई प्लेड, हैज़ शी प्लेड, क्वेश्चन मार्क, राइट? Now the fourth one that we will take over here, so that is present perfect continuous। Now this is continuous tense, मतलब once again ing form, perfect मतलब
एच वर्ड, और क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए हैव या हैज़. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल विथ आई यू वी दे, दैट इज आई. राइट. अब प्रेजेंट है और परफेक्ट है, तो एच वर्ड हमें यूज़ करना है परफेक्ट के लिए, और प्रेजेंट है इसलिए हैव. अगर यही पास्ट परफेक्ट होता तो ये परफेक्ट का तो एच होगा ही, लेकिन पास्ट के लिए हम बना देते हैं हैड, एच ए डी. सो बैक टू प्रेजेंट. सो आई, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव. अब कंटिन्यूअस का क्या होगा? प्लेइंग. प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, लेकिन आई हैव प्लेइंग तो गलत जा रहा है. तो इन दिस केस वेरी कंपल्सरी व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड इज बी ई ई एन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसी को नेगेटिव में रखना है तो आई हैव बीन नॉट प्लेइंग. हैव आई बीन प्लेइंग? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन. अब इसी को और सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रोनाउन के साथ अगर हम लेते हैं तो ही ले लो. ही प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़, कंटिन्यूअस का प्लेइंग, लेकिन ऐड करना होगा टू मेक इट सेंसिबल, ही हैज़ बीन प्लेइंग. नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ वी मूव ऑन to our past forms, that is simple past tense. अब simple past tense में हम क्या लेंगे? यही जो एग्जाम्पल था हमारा I play, he plays, लेकिन पास्ट में सबके लिए सेम होगा. एज आई टोल्ड यू, आई यू वी दे प्लेड, ही शी इट प्लेड. तो सारे प्रोनाउन के लिए पास्ट का हेल्पिंग वर्ब सेम होगा. राइट. एंड इवन द एक्शन विल बी सेम. आई यू वी दे ही शी इट प्लेड. सो आई प्लेड या आई डिड, आई wrote. So let's take this time one new example. Say I wrote. He wrote. Right? और इसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में डालना है तो, या नेगेटिव में, you will say did I write. और अगर नेगेटिव बनाना है तो I did not write. अब यहाँ पे wrote क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ किया है did, और did के साथ हमेशा होगा प्रेजेंट टेंस. did के साथ did ऑलरेडी इज पास्ट, तो हम और एक पास्ट नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे. और इसी को अगर तुम्हें क्वेश्चन में डालना है तो क्या यूज़ करोगे? डिड आई राइट. क्लियर? नाउ वन मोर. सो अंडरस्टूड. सिंपल पास्ट टेंस इज वेरी सिंपल, नो एक्स्ट्रा ING फॉर्म एंड ऑल, क्योंकि वो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस में. ना तो एच वर्ड यूज़ करने हैं, लाइक पास्ट का पास्ट परफेक्ट विल बी हैड, तो ना एच वर्ड यूज़ करना है क्योंकि हम परफेक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम वेरी वेरी सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. तो वेरी सिंपल पास्ट टेंस, आई यू वी दे ही शी इट रोट. जैसे मैंने बताया था, पास्ट के लिए जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सारे प्रोनाउन के साथ एक्शन या हेल्पिंग वर्ब सेम होंगे. यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर योर. आई डिड
she or he, any you can take. Did, सबके साथ did, और क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, दैट इज he did not do, she did not do, right? Accordingly you will frame the question. अब इसके बाद होगा वन मोर, वैसे तो कई बाकी हैं, बट एट प्रेजेंट नेक्स्ट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लेंगे वंस अगेन, फॉर्म विल बी पास्ट लेकिन ing होगा वहाँ पे, राइट? सो पास्ट कंटिन्यूअस आई विल से I was writing, he was writing, she was writing. तो पास्ट का was, कंटिन्यूअस का ing, वेरी सिंपल. और उसी को क्वेश्चन में या नेगेटिव में रखना है तो was I और he, she, it, क्योंकि सबके लिए सेम होगा, was I writing, और you would say I was not writing, right? So accordingly past continuous में ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन, राइट? आई यू वी दे ही शीट के साथ सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे सारे प्रोनाउन के साथ. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. As I told you before also, perfect means H word. If it would be present perfect, हमने यूज़ किया था have या has. I, you, we, they have, he, she, it has. लेकिन past perfect तो once again H word ही होगा, लेकिन सबके लिए common had. I, you, we, they, he, she, it had. H-A-D had. So let's take example. We had taken about wrote, writing. तो यहाँ पे हम लिखेंगे I had written. Now why written over here? H for perfect, past है इसलिए had, और had perfect के साथ always थर्ड वर्ब फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ऑलवेज थर्ड वर्ब फॉर्म. एंड व्हाट इज थर्ड वर्ब फॉर्म? दैट इज राइट, रोट. फिर जो हम बोलते हैं थर्ड, दैट इज परफेक्ट, रिटन, डू, डिड, डन. तो डन बना थर्ड वर्ब फॉर्म. गो, वेंट, गॉन, गॉन बना थर्ड वर्ब फॉर्म. सो फॉर दैट some 5 to 8 minute short video will be sent to you about the irregular verbs and what is first form, second form and third verb form. At present, I think so many of you must have clearly understood. बाकी के भी देख लो और irregular verb का भी वीडियो चेक कर लेना. Later on it will be sent to you. लेकिन the moment you move to perfect, it means कि third verb form ही होना चाहिए, right? जैसे अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो भी ये रिटर्न ही होता, पास्ट परफेक्ट है तो भी रिटर्न ही होगा, क्योंकि कंपलसरी ये एच वर्ड हैव, हैज़ या हैड जो हमें बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है, उसके साथ थर्ड वर्ब फॉर्म. लाइक आई हैव रिटन, शी हैज़ रिटन, लेकिन ये पास्ट हम कर रहे हैं तो आई हैड रिटन, she had written, right? I, you, we, they, he, she, it के साथ had
और नेचुरली थर्ड वर्ब फॉर्म। अब इसी को अगर तुम्हें थोड़ा नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो वी कैन राइट अ नेगेटिव सेंटेंस लाइक आई हैड नॉट रिटन। सिंपल नेगेटिव, इसी का नेगेटिव बना है। इसी का अगर तुम्हें क्वेश्चन बनाना है तो हैड आई written question mark. Clear? Now the next, that is past perfect continuous. So past perfect continuous tense. अब यहाँ पे तुम लोगे कंटिन्यूस, दैट इज ING। अब परफेक्ट है तो नेचुरली H वर्ड, लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो हमें क्या यूज़ करना है? HAD, हैड। और हमने बताया था कि कंटिन्यूस में ING, बट यू कांट राइट इट दिस वे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आई past perfect had continuous का राइटिंग। अब ये तो गलत हो गया, तो हम लिखेंगे क्या? हमने कहा था यहाँ पे हम वर्ड ऐड करना है BEEN। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन डूइंग, I had been swimming, I had been teaching। हम ये नहीं कहेंगे I had teaching, I had cooking। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हर एक में हमें बीन वी विल यूज, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू, so we did the 4 forms of past. Simple past, I wrote, right? I did, I came, I cooked, I swam। इसी को अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस हमने बनाया था तो क्या था? I was writing, I was doing, I was singing, I was cooking। Then we came to past perfect। जैसे परफेक्ट में आए तो H वर्ड याद करना है, लेकिन पास्ट है इसलिए हैड। आई हैड थर्ड वर्ब फॉर्म, शी हैड थर्ड वर्ब फॉर्म, राइट। अब कंटिन्यूस आ गया तो ये ही बन जाएगा राइटिंग। पास्ट परफेक्ट का वर्ड तो वो ही रहेगा, लेकिन आई हैड स्विमिंग, आई हैड राइटिंग, आई हैड कुकिंग, आई हैड टीचिंग गोज रॉन्ग, वी ऐड बीन, राइट। और उसी तरह से क्वेश्चन बनाना है तो आई हैड नॉट बीन राइटिंग, शी हैड नॉट बीन राइटिंग, राइट। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाना है तो हैड आई बीन राइटिंग, हैड शी बीन राइटिंग। नाउ द लास्ट पार्ट विल बी नाउ द फ्यूचर। सो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट इज शी विल डू इट, आई शैल डू इट, राइट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ही विल cook। You can write many example. He will sweep the floor, he will wash the clothes, etc. Right? So he will cook। We have a very simple future tense। यहाँ पे बन जाएगा
he will not cook. क्वेश्चन बनेगा will he cook? Now, next is future continuous. Now, future continuous tense, I will take the same example, will continue with, that is, he will be cooking. अब फ्यूचर का हो गया will, continuous, ing, and I told you that when it was had, has, have, continuous के साथ हमने been यूज़ किया था. Once again continuous, future continuous, तो हमने यूज़ किया be form. If it is will, would, can, could, shall, should, may, might, तो हमेशा ये ऑक्सिलरी के साथ we will use be, e. have, has, had के साथ BEEN, been. So he will be cooking. Future का will, continuous, cooking. But I told you here also and over here also that because it is continuous, यहाँ पे तुम ये नहीं कहोगे he will cooking, he will teaching, he will swimming. तो continuous के आगे be फॉर्म लगाना है और be फॉर्म अलग अलग होंगे. जैसे ये ऑक्सिलरीज हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इनके साथ यूज करेंगे बी ई. एच वर्ड होंगे तो हैव, हैज, हैड के साथ BEEN, बीन. राइट. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ तुम यूज करोगे एग्जाम्पल ही विल हैव, थर्ड वर्ब फॉर्म डन. अगर हमने डू लिया है, यहाँ पे कुकिंग है तो ही विल हैव कुक्ड. राइट. एंड सो दैट इज परफेक्ट का एच, फ्यूचर विल. क्योंकि एच है थर्ड वर्ब फॉर्म. राइट. थर्ड वर्ब फॉर्म. और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, I will make use of he will have been cooking. अगर do है तो doing. So will future, perfect का h word, continuous ing, and I told you always the moment it is ing be form, ing be form, ing be form. और h word के साथ it will be been, auxiliaries के साथ be, लेकिन लास्ट में continuous होना चाहिए. Then you can use this be form. Now let's see tenses in a nutshell. That is very much in short. Overall, just have a look at it. We did in total 12. That is 4 of present, 4 of past, 4 of future. Simple present we took
सब्जेक्ट दैट इज द डूअर, आई यू वी दे ही शी इट, जो भी एक्शन कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट या डूअर. तो सब्जेक्ट प्लस द बेस वर्ब वी टुक, बेस वर्ब दैट इज सिंपल फॉर्म, दैट इज आई टीच. और कोई होगा तो हम लिखेंगे टीचीज, ही शी इट टीचेस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में इट विल बिकम अगेन सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंटिन्यूस फॉर्म ing. He is teaching. They are teaching. I am teaching. प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम लिखेंगे हैज़ या हैव. तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, राइट, प्लस थर्ड वर्ब फॉर्म. तो वो क्या होगा, आई हैव, थर्ड वर्ब फॉर्म टीचिंग का टॉट, राइट. और जैसे ही कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, जैसे मैंने कहा था, प्लस ing कंटिन्यूस वर्ब फॉर्म. तो एग्जाम्पल होगा I have been teaching. Clear? And the next, that is similarly simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So same way we will use over here, that is simple past. You will write subject, तो subject plus past of the main verb. तो verb को हम लिखेंगे action plus, अगर ed है तो ed आ जाएगा तो simple past. Let me give you one example. I sang, सिंपल पास्ट. पास्ट कंटिन्यूस क्या बनेगा, आई वॉज सिंगिंग. सेम, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ing of the action. Right? I was singing, I was watching, I was teaching. फिर आ गया पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे तो कॉमन ही है सबके लिए, हैड, राइट, प्लस क्योंकि एच है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो थर्ड वर्ब फॉर्म. आई हैड. अब सिंग प्रेजेंट, sang पास्ट, और थर्ड वर्ब फॉर्म sung. आई हैड sung. और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, तो होना ही है, राइट, हैड
प्लस क्योंकि कंटिन्यूस है तो हमने यूज़ किया बीन, मैंने बताया था। तो एग्जाम्पल होगा आई हैड बीन सिंगिंग। और उसी तरह से द लास्ट पार्ट एंड दैट इज फ्यूचर। सो सिंपल फ्यूचर, future tense, then there is future perfect you will take, future continuous, future perfect continuous. So simple future I would say she will do. Then future continuous, she will be doing. तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट प्लस योर ऑक्सिलरी दैट इज प्लस action, that is your verb. Now future continuous will be, you can say I or she will be doing. फिर future perfect लेते हैं, that is future perfect. You can take example she will. अब क्योंकि परफेक्ट है हैव और थर्ड वर्ब फॉर्म विथ एच वर्ड, तो डू का थर्ड वर्ब फॉर्म डू प्रेजेंट, डिड पास्ट, परफेक्ट दैट इज थर्ड वर्ब फॉर्म इज डन, राइट। और फ्यूचर perfect continuous tense will be she will have, जैसे मैंने कहा था, प्लस ing कंटिन्यूस के साथ आगे been, she will have been doing, right? And we can take few examples also, like इसकी जगह पे अगर मैं they ले लेती हूँ तो भी they will have been doing, they will have been running, they will have run, they will be running, they will run. So run, ran, run. So irregular verbs also, as I told you, I'll be providing you, but उसके पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि ये सारे टेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे if you want to have perfection with voice and many other parts in grammar which we'll be doing ahead. तो irregular verbs, third verb form, everything you'll have to keep on just reading on and on. बाय हार्ट तो करना है नहीं ग्रामर हमें, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो हम थर्ड वर्ब फॉर्म मतलब एक है प्रेजेंट, फिर उसी का एक पास्ट, उसी का एक परफेक्ट फॉर्म, तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं थर्ड वर्ब फॉर्म। जैसे कम प्रेजेंट टेंस, केम पास्ट, वापस उसका थर्ड वर्ब फॉर्म कम, डू, डिड, डन,
वॉच, वॉश्ड मतलब कि देखना। और कई बार ये पास्ट और थर्ड वर्ब फॉर्म सेम भी हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड वर्ब फॉर्म है? तो इसके आगे हम एच वाला वर्ड अटैच कर रहे हैं, लाइक हैव, राइट? हैव वॉश्ड, हैज़ वॉश्ड, हैड वॉश्ड, तो पता चल गया कि ये थर्ड वर्ब फॉर्म है। इफ इज सिंपल वॉश्ड, it is your past tense. Now, you can take one more like sing, present, sang, sung. I sing, I sang, I have sung, past है तो I had sung. या I write, I wrote, I had written, she had written, या I have written. Any H present या past और बन जाएगा written. She has written, right? Accordingly, तो ये थर्ड वर्ब फॉर्म बहुत ज़रूरी है. And a list of that already has been provided to you in the notes, so go through it. हाँ, examples इसके आगे follow होते रहेंगे. Till then, take care. Thank you so much.